میں بالکل جو ہے بہت جیسے ہیٹ کرتا ہوں قرآن کو دیکھ کر اور ہسٹری کو پڑھ کر محمد کی جو جو ان کے بیہیو تھے، جو ان کے کارنامے تھے، وہ کم و بیش جو ہے اتنا تو جانتا ہوں کہ یہ شخص جو ہے یہ پوری دنیا کو جہنم بنا ڈالا اور ہم لوگ برباد ہو گئے۔ قرآن جو پڑھ لے گا، چاہے ٹھیک ہے اس کے ٹیکسٹ سے واقف ہو نہ ہو، ترجمہ ہی صحیح، سب سے بڑی جو ہے غلطی اس کمیونٹی کا یہ ہے کہ وہ قرآن ہی کو نہیں پڑھے، ترجمہ بھی پڑھیں گے تو میرا خیال ہے کہ کم سے کم 50% تو سمجھ میں بات بالکل آ جائے گی، اور اتنی نفرت اس سے ہو جائے گی کہ یہ کیا ہے، یہ خدا کا کلام کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو بالکل سطحی سٹینڈرڈ ہے اس کا۔ یہ تو جیسے 2-4 کے بچے جس طرح سے لکھتے ہیں پڑھتے ہیں اس سے بھی خراب ہے۔ یہ اتنی بڑی چیز آپ لوگوں نے لے رکھی ہے ذمہ داری کی۔ اب رہا یہ کہ دیکھیے، میں تو نام سے منہاج ہوں ہی، لیکن میں بالکل جو ہے بہت جیسے ہیٹ کرتا ہوں قرآن کو دیکھ کر اور ہسٹری کو پڑھ کر محمد کی جو ان کے بیہیو تھے، جو ان کے کارنامے تھے، وہ کم و بیش جو ہے اتنا تو جانتا ہوں کہ یہ شخص جو ہے یہ پوری دنیا کو جہنم بنا ڈالا اور ہم لوگ برباد ہو گئے، ہماری قوم سنتی نہیں۔ سچ والا صاحب، ایک بات جو ہے بار بار ذہن میں میرے آئی ہے، دیکھیے، قرآن جو پڑھ لے گا، چاہے ٹھیک ہے اس کے ٹیکسٹ سے واقف ہو نہ ہو، ترجمہ ہی صحیح، اگر وہ پڑھتا ہے شروع سے، اب اگر آپ مجھے موقع دے تو میں کچھ بولوں، جی جیسے جی ہاں ایسا بولیے تو بولے نا۔ بولیے دیکھیے، جی بولیے بولیے سب سے بڑی جو ہے غلطی، سب سے بڑا المیہ اس کمیونٹی کا یہ ہے کہ وہ قرآن ہی کو نہیں پڑھے، اس کے ترجمے چاہے، حالانکہ ترجمہ بھی اگر بہت پہلے لوگوں کا جیسے ابن کثیر ہوں یا جو ہے طبری ہوں یا ایسے لوگوں کا ترجمہ بھی پڑھیں گے تو میرا خیال ہے کہ کم سے کم 50% تو سمجھ میں بات بالکل آ جائے گی، اور اتنی نفرت اس سے ہو جائے گی کہ یہ کیا ہے، یہ خدا کا کلام کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو بالکل سطحی سٹینڈرڈ ہے اس کا۔ یہ تو جیسے 2-4 کے بچے جس طرح سے لکھتے ہیں پڑھتے ہیں اس سے بھی خراب ہے۔ یہ میں خود اپنا تجربہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ ہم جی نے جی جی ہاں، اگر ہم تھوڑا سا بات کر لیں، یہ بتائیے آپ، کیونکہ ہم سے کہا گیا کہ جوائن کریں، کچھ اپنی بات بتائیں، اس وجہ سے ہم نے جوائن کیا، نہیں تو آپ لوگوں سے ہم کیا بات کر سکتے ہیں؟ آپ لوگوں کی بات سننا ہی میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے اور اچھا لگتا ہے۔ جو میسج میں دنیا کو دینا چاہتا تھا وہ آپ لوگوں نے جو ہے وہ کر دکھایا ہے۔ یہ میں بہت آپ لوگوں کا مداح بھی ہوں، سچ والا صاحب اور آپ عبدالحمید بھائی اور عثمان بھائی اور جتنے بھی احباب ہیں۔ تو یہ ہے کہ قرآن جو بھی پڑھ لے گا، اس کا ترجمہ بھی اگر پڑھ لے گا تو وہ قرآن یہ خدا کا کلام ہو سکتا ہے، یہ تو امپاسبل معلوم ہوگا، بلکہ ہیٹ ہوگی، نفرت ہو جائے گی کہ کیا بھرا ہوا ہے اس میں، ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ جو بیان کرتے ہیں سچ والا صاحب، تو اس کا اصل جو ہے وہ ٹیکس سے ہی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور لوگوں نے اپنے موافق کرنے کی کوشش کی ہے، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ جیسے کہ ابن کثیر نے کچھ لکھا ہے، ادھر معرف القرآن میں مفتی شفیع صاحب نے کچھ لکھا ہے، اپنے موافق کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ ہم نے جو کتاب لکھی ہے سچا صاحب، دونوں کا اور لوگوں کا ہم نے کمپیئر کیا ہے کہ دیکھیے کیسے کیسے لوگ بنائے، اس کے باوجود بھی اگر جو دیکھیے اختلاف تو شروع سے ہے، اعوذ باللہ کے بارے میں شروع ہو جا رہا ہے، اور پہلی وحی کون سی ہے،
भाई अब इसमें 3 अक़वाल हैं क्या, कि कोई कहता है इक़रा है, कोई कहता है औज़ है, कोई कहता है सूरह मुदस्सिर है। देखिए यहीं से शुरू हो जा रहा है। और हमने पूरे कुरान को, माज़रत के साथ, कि हमने बहुत गहराई से जो भी मुझसे बन पड़ा है हमने उसकी तफसीर से, ट्रांसलेशन से पढ़ी है। इतने तज़ाद हैं इसमें, इस कदर तज़ाद हैं, मैं अपने लोगों से ये बात कहता हूँ, बल्कि हमने अपनी किताब में भी लिख दिया इसको, कि कोई आयत मुझको ऐसी नहीं मिली जिस पर सबका इत्तेफाक हो। यही औज़ुबिल्लाह से शुरू कीजिए। फिर आइए अलिफ लाम मीम ज़ालिकल है। ज़ालिक के माने ये तो आप शुरू से जो दर्स कुरान दे रहे हैं सब आपने डिफाइन कर दिया है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमारी कौम देखती नहीं ना, वो पढ़ती नहीं कुरान को, सिर्फ उसके तर्जुमे को पढ़ ले तो ये समझ जाएंगे कि ये क्या है। ये इतना बड़ा, ये वाहियात शख्स जिसका नाम मोहम्मद है, उसने हम लोगों को बर्बाद कर दिया, हमारी कम्युनिटी को बिल्कुल बर्बाद करके रख दिया। और ये मुल्ला मौलवी ये कहते हैं कि आम लोग, अरे हजरत थानवी, मैं 20 साल पहले पढ़ा हूं, मेरे सामने किताब रखी हुई है, दावाते अब्दियत है उनकी, उसमें उन्होंने लिखा है, उनके बयान है 2.5-3 घंटे के। उन्होंने कहा कि आम आदमी को तर्जुमा भी नहीं पढ़ना चाहिए कुरान का, नहीं तो वो गुमराह हो जाएंगे। अरे यहाँ कुरान ऐलान कर रहा है कि हमने जो है आसान किया, हमने इसमें बहुत हिकमत दी, समझो समझाओ, और ये जो है मना कर रहे हैं। क्या बात है भाई, हमने कुरान को शुरू से जब पढ़ा है सचवाला जी, लबो लबाब ये कि पहली बात देखिए, अब ये शुरू यानी कि पहली वही कौन है, यहां से इख्तिलाफ। लास्ट जो कुल औज़ु रब्बिन नास फलक है, उसमें ये है कि ये कुरान की सूरह है या नहीं है। इसमें अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु और उनके और जो है बाब हैं, वो तो साफ कहते हैं कि ये कुरान की सूरह है ही नहीं है। अब जो है उस पे बातचीत हुई लोगों में, फिर क्या हुआ कि बाद में उसको रुजू किया। इब्ने मसूद जो है, उन्होंने कहा कि हमने रसूलुल्लाह से ये कुरान में नहीं सुना है इसको, उन्होंने सिर्फ कहा कहो, तो हमने कहा ये जो है इस कुरान की सूरह नहीं है। फिर बाद में उसमें उसके नुस्खे लिख के चौतरफ फैलाए गए। यानी शुरू से आखिरी तक हमारा जो तजर्बा है सचवाला जी, कोई इसमें डाउट नहीं है कि अगर जो भी कुरान को शुरू से उसके तर्जुमे को पढ़ लेगा, वो कभी ये मान नहीं सकता कि ये खुदा का कलाम हो जाएगा। और अभी आपसे इससे पहले दो एक साहब चांद के बारे में आप जानते ही हैं, आपको हम क्या बताएं, चांद सूखी टहनी की तरह हो जाता है। उसमें जो है हमने महुइयत दी है, उसकी रोशनी। अरे कहाँ पागल इसी बात करते हो भाई, ये सारी चीजें जो है ये 500 साल पहले सचिवाला साहब आप जानते होंगे कॉपरनिकस थे, और ये आकर साबित किए कि जो है भाई जमीन जो है वो घूमती है। उस वक्त के उनके जो जितने उलमा थे, और सारी किताबों में जो भी आसमानी कही जाने वाली किताबें हैं, सब में यही तस्करा है कि जमीन जामिद और साकिन है और सूरज गर्दिश करता है। जब वो कॉपरनिकस गैलीलियो गिली ने साबित किया, तो गैलीलियो गिली को तो जाहिर है कि जिंदा जला दिया उन सब उस वक्त के जो बड़े बड़े उलमा थे। और फिर उसके शागिर्द जो है वो जो कॉपरनिकस और ये क्या नाम है हमने बताया, उसको भी जब उसने भी साबित किया कि भाई ये तो जमीन जो है ये मूव करती है, घूमती है, और सूरज के बारे में बताया कि जामिद है, वो बिल्कुल उल्टा। यानी एक नहीं है। हम अगर कहना चाहें ना सचवाला साहब, आपका टाइम और लोगों के लिए भी होगा, इतनी बातें हैं, इतनी बातें हैं, इतने तजाद हैं कि हद हो गई है, हद। और ये मोहम्मद, मैं अपनी जबान गंदा नहीं करना चाहता उसका नाम लेकर, ये समझ लीजिए इतना वाहियात आदमी था ये। इसकी पूरी जिंदगी देखिए, ये क्या से क्या इसने किया है, पूरी दुनिया को तबाह कर दिया है इस शख्स ने। आज मुसलमान जो गिरी नजर से देखे जाते हैं, तो हमने जो बोया है वही काट रहे हैं हम हैं।
हमारे जो लोग 1400 साल पहले और सहाबा ने जो जो किया, जो जुल्म किया, कुरान उसका गवाह है, वो आज जो है हम उसका काट रहे हैं। उसी से हमको नफरत की नजर से देखे जाते हैं हम लोग। और सारे जो इंतहा पसंद है, टेररिस्ट हैं, जो भी सब हैं, दाइश हैं, सिमी हैं, और वो क्या नाम है, जो भी हैं, बहुत बेशुमार अब तो दुनिया में फैले हुए हैं। इन लोग जो कर रहे हैं उसकी वजह से मुसलमान बेचारे शिकार। अब मुसलमान का ये मसला है, मौलाना साहब कह दिए वो, हाँ ठीक है, हमको फुर्सत नहीं है कि कम से कम कुरान के तर्जुमे को तो देखें। तर्जुमा भी देख लेंगे, मैं गारंटी हमको, खैर लगता ऐसा है कि कोई कह नहीं सकता अरे क्या है कुरान में, क्या है भाई। एक ही चीजें इतनी रिपीट हुई हैं, इतनी रिपीट हुई है, सारी झूठें जो साइंटिफिक अभी जो बता रहे थे ना, एक भी नहीं है। अब आपने जो है कहफ का जो है वाकया और खिजिर का वाकया, अल कहफ का जो बयान किया है जुल्करनैन का, आप बता दीजिए। ये सचवाला साहब जो वाकया खुदा कह रहा है ना जुल्करनैन में, कि ये लोग पूछते हैं जुल्करनैन के बारे में, मुख्तसरन बता देता हूं। क्या वो गया जुल्करनैन, और वो ऐसी जगह जो कि बिल्कुल वो क्या कहते हैं उसको, दलदल जैसी से चश्मे में डूब रहा है, और वहां कौम देखिए ये सब। फिर इधर आया, फिर आया देखा कि वहां पर याजूज माजूज, और ये सारा वाकया है कुरान का, ये तर्जुमा है, तर्जुमा, ये नहीं कि कोई तफसीर वगैरह है। तो क्या चीज अच्छी है, कौन सी बात सही है कुरान की, जो उस पर यकीन करता है वो बेचारा माजूर हम समझते हैं। लेकिन उसकी गलती ये है, मैं तो बार बार यहाँ कहता हूँ, लोगों को से अक्सर बात करता हूँ, कोई मौलवी मेरे पास अब फटकता नहीं है। अब बता दूं, मैं कासमी मेरे पास बैठा था, वो बराबर आते हैं, और मेरी जो है कह लीजिए कि वो शुरुआत ही जो है, बचपना ही कह लीजिए, ये मौलवियों के झुरमुट में रहा, पढ़ा लिखा हमने जो भी है इनसे ही। लेकिन उस वक्त ही से मैं समझ रहा था, या बात जो है बहुत चुभ रही थी, ये कैसे, ये कैसे, ये कैसे। और मैं बता दूं सचवाला साहब, मैं देवबंद भी गया हूँ, वहां जो है जो मुदर्रिस थे, पढ़ा रहे थे बच्चों को, क्या कि सिर्फ ईमान वाला ही जन्नत में जाएगा, और जितने हैं वो जन्नत में नहीं जाएंगे। हम कहे ये सवाल तो है। हमने जब बच्चों को पढ़ा लिया, बच्चे वहां चले गए, तो हमने सवाल किया, तो क्या उन्होंने जवाब दिया कि देखिए तो मसले तकदीर का है, इसको हल नहीं किया जा सकता। अरे इन लोगों के पास कोई जवाब नहीं है। अब मैं आपकी बात सुन रहा था, जो मुफ्ती कासिम साहब हैं, हमारे बगल ही के हैं, उनसे अच्छे मरासिम थे मेरे, उन खाना पीना इस तरह से थे। अब आपसे देखिए किस तेवर में बात कर रहे हैं, और एक आयत वो जो है उसको पेश कर रहे हैं, और इस तरह की सैकड़ों आयतें कुरान में भरी हैं जिसमें नफरत की तालीम है, उन कुफारों से, यहूदियों से, ईसाइयों से, यानी बेशुमार हैं। मैं क्या क्या बताऊं आपसे, रहा है क्या बताएं। आप मुझसे कुछ अगर पूछना चाहें, देखिए ये इतनी ऐसी बातें हैं ना, हमने कहा ये सचवाला साहब देखिए इहयाउल उलूम है, उसमें ज़कात के मामले में बहुत फर्क है। हमारे यहाँ मुस्तामल चीजों पर ज़कात नहीं है, लेकिन जेवरात पर कह रहे हैं हनफी। और वहीं जो है इहयाउल उलूम में इमाम गजाली ने लिखा है कि नहीं, जेवरात ये इस पर ज़कात नहीं है। ये जैसे मोटी मोटी बातें, इतनी तजाद हैं। हमने तो कुरान को जो भी पढ़ा है, हम मुझको एक आयत भी ऐसी नहीं मिली जिस पर सबका इत्तेफाक हो कि हाँ ये सही है। ये है हाल, बताइए किस किस तरह लोग कहते हैं कि कुरान जो है वो अल्लाह की किताब है। अरे क्या बात करते हो तुम, कितना बड़ा ब्लेम खुदा को दे रहे हो। अगर खुदा है तो एक तो अव्वल तो होने का सबूत नहीं, न होने का भी सबूत। जैसे आइंस्टीन से पूछा था लोगों ने, भाई खुदा के बारे में क्या ख्याल है, तो उसने कहा देखिए भाई, मैं न हाँ को साबित कर सकता हूं, न ना को साबित सकता हूं। और ये हमारे मौलवी इतना बर्बाद कर दिया हमारी कौम को कि मैं क्या कहूं। मैं बराबर जो है, देखिए थोड़ा सा ये ना समझिए कि मैं कुछ अपनी बड़ाई के लिए कह रहा हूं, मैं हिंदी में लिख रहा हूं,
समझ लीजिए आप, मैं वक्त निकाल निकाल कर हिंदी में लिख रहा हूँ, और इतनी बातें लिखा हूँ, इतनी, पूरे कुरान को उर्दू में तो शुरू से आखिर तक लिया है, हिस्ट्री लिया है, तबरी की हिस्ट्री है मेरे पास, न जाने कितनी हिस्ट्री। मसला ये है, देखिए कुरान में क्या कह रहा है, नबी इनके खुदाओं, ए नबी और ए मोमिनीन, खुदा इनकी माबूदों को गालियां मत दो। जब हमने एक कासमी से कहा कि यार वो मोहम्मद गाली देते थे क्या, तो उसने कहा कि नहीं ऐसा तो नहीं है। फिर हमने मारफुल कुरान देखा, उसमें भी वो बाद में कह रहे हैं कि हुजूर से गाली देना तो साबित नहीं है, सहाबा से हो सकता है कुछ शख्स कहा हो। अरे बाबा क्या कह रहे हैं आप, वही सहाबा पे थोड़ी नाजिल होती थी, ये तो यहाँ बिल्कुल डायरेक्ट कहा जा रहा है नबी उनके माबूदों को गालियां मत दो। और इसकी तस्दीक तबरी ने जो लिखी है, हुजूर की जो बारे में लिखा है कि वहां जो मुशरिकीन थे, जो कुरैश थे, उनके सरदार जाते थे अबू तालिब के यहाँ, कहते थे कि इनको मना कर दीजिए, ये गालियां न दे मेरे बाबूदों को, ये अपना करें हम अपना करें। दो दो बार मिनहाज लोग अहमद गए, साहब, लेकिन ये शख्स जो है नहीं मानता मिनहाज था। अहमद साहब, बहरहाल ये आप तो सब जानते हैं, आपको मैं क्या कहूं, ये बात अभी इस मिनहाज तरह अहमद साहब, निकलेगी तो न जाने कितनी निकलेगी, हेलो, एक आपको आवाज कहीं आ रही है से मेरी? भी सही साबित नहीं हो हेलो, सकता। ये शख्स जो है खुदा का मिनहाज रेफरेंस अहमद साहब, देकर आपको लोगों को आवाज आ रही गुमराह है? किया। जी 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 बोलिए। जी जी, मैं ये जी पूछ रहा हूँ, आपने किताब जो लिखी है वो कौन सी किताब है, जी, उन्वान क्या है उसका? उसका हमने बल्कि फोटो जो है ना वो व्हाट्सएप से भेजा था उस्मान भाई को। उसका है, पहली जो मेरी किताब है वो तालीफ तासुफ इस्लाम, ये है। ये छप कर मेरी बहुत, इस पे बहुत एतराजात हुए। हमने वही सवाल पैदा किया उसमें, कुरान की आयतों का रेफरेंस देकर, उसके तर्जुमे तफसीर से रेफरेंस देकर हमने सवाल पैदा किया। इसमें बहुत मौलाना सब जो है, आज तक एक उसका नुक्ता नहीं कोई काट पाया हमीद भाई, समझा आपने, कोई ये नहीं कर पाया कि जो है ये नुक्ता, ये आप है नहीं, आपने कहां से लिख दिया है। सुन लीजिए आप बात, बड़े बड़े मौलाना हमारे पास आए, ये कह के गए कि हाँ भाई बात तो सही है, लेकिन इससे अवाम जो कंफ्यूज होगी। हम क्या, कंफ्यूज तो आप लोगों ने कर रखा है। अब बता रहा हूं कि ये हमारे बगल में कासमी है, मेरा ताल्लुक उलमा से बहुत रहा है, अब तो बिल्कुल मुझसे वो डरते हैं, बल्कि समझ लीजिए मेरे करीब नहीं आ सकते। मैं, इतने सवालात हैं, इतने सवालात हैं कि एक भी अरे तो सही वो मिनहाज जवाब अहमद नहीं दे साहब, पाएंगे, क्या है। आप जी, हमको हमको जोड़ दीजिए ना ये कासमी हजरात से, सच वाला जी कुछ कुरान पे बात कर लेंगे उनसे, यहाँ आएंगे तो वो। ऐसा है ना, ठीक है, बिल्कुल सही। मैं तो जो मुझसे छूट गया है, मैं उसको सचवाला साहब के उससे नोट करता हूँ। लेकिन हमीद भाई, ये मैं बता रहा हूँ आपसे ना कि जब मैं कुरान को थोड़ा बहुत ही जानता हूँ, लेकिन इतना जानता हूँ कि हमारे पास कोई कासमी हो, कोई भी आलिम हो, कुछ भी हो, अब आते नहीं यहाँ बैठकर मेरे सामने। जब हमें बनी कुरैजा का वाकया सूरह अहज़ाब का सुनाया, तो वो चौंक गया, कहा नहीं ऐसा तो नहीं। हम कह रहे ऐसा क्यों कह रहे हो यार, तो वो हमारी तफसीर थी है, उसको पढ़ा वो कासमी मौलाना, समझिए वहां से फारिग है। उसने कहा कि हाँ ये तो है। तो हमने उससे पूछा क्या भाई तुमको कुरान तुम नहीं पढ़े हो क्या, तो उसने क्या कहा जानते हैं, उसने कहा कि हम लोगों को सिर्फ सूरह बकरा ही पढ़ाया जाता है, 6 माह इसमें लग जाते हैं, उसके बाद जो है कवायद है, ये है वो है, फिर छुट्टी हो जाती है। हम कह रही, फिर उसके बाद सचवाला साहब और अहबाब लोग सुन लीजिए, उसके बाद जिसने भी मेरी किताब पर इतराज किया, और खास तौर से आलिम, तो मैं उनसे पहला सवाल यही करता था कि पहले ये बताइए कुरान को अलहम्द यानी औजुबिल्लाह से नास तक पढ़ा है कि नहीं, तर्जुमे से कम तर्जुमे से। आप समझ लीजिए कि किसी आलिम ने ये नहीं कहा मुझसे कि हाँ हमने पढ़ी है। अब बताइए, वो नहीं, और क्या क्या बयान करते हैं सब, ये कैसे कोई उस पर बात भी, कुरान पर तो बात करने लायक नहीं, इतना घटिया, इतना गैर मेयारी, इतना पस्त मेयार उसका है। और बताइए, अब जैसे सचवाला साहब जो है सूरह अहज़ाब की 50वीं आयत के बारे में कहते हैं, बताइए, वो मैं लोगों से कहता हूं देखो ये है क्या है, जबकि सचवाला साहब थोड़ा सा एक या तो दानिस्ता वो मिस करते हैं, जैसे कि भाई जो हेबा करने वाली लड़कियां हैं और भी जो हैं,
اس میں یہ بھی اس ترجمے میں ہے، تفسیر ابن کثیر میں انہوں نے لکھا ہے آپ کے لیے اس وجہ سے ہے کہ آپ پر حرج نہ ہو. یہ دیکھیے یہ ترجمہ کیا ہے یہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے. پھر اس کی تصدیق بخاری کی حدیث، عائشہ فرماتی ہیں کہ ان ہبا کرنے والی لڑکیوں کو غیرت نہیں آتی، شرم نہیں آتی، یہ اپنا نفس حضور کو ہبا کر رہی ہیں. اب آپ بتائیے یہ کوئی پڑھے گا کیا لیسن لے گا؟ یہ تو ہے ان کے معاملات کے بارے میں اور قرآن کو، یعنی کہاں سے وہ صحیح ہو رہا. حضور کی زندگی تو آپ دیکھیے نا، آپ لوگ تو بہت زیادہ مجھ سے جانتے ہیں. 13 سال مکے میں رہے، وہاں خال جو ہے کچھ مسلمان ہوئے، وہ بھی بہت غریب اور کچلے ہوئے لوگ. مدینہ آئے، مدینہ سے پہلے ہی جو ہے جو 313 کے آس پاس صحابہ تھے ان کو لے کر چل دیے، صحابہ سے کہہ کر کہ بھئی سفیان جو ہے ملک شام سے تجارتی سامان لے کر آ رہا ہے، چلو لوٹ لیا جائے. یہ بالکل وضاحت کے ساتھ تبری نے بھی لکھا ہے، تاریخ تبری میں بھی، اور یہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے اس کو کہ یہ لوگ لوٹنے گئے تھے. اب آپ سوچئے ذرا سا، اور اس کے بعد جب وہ مال مل گیا، عورتیں وغیرہ قید کر لیے، اب ان کے داماد بھی تھے، ان سے فدیہ بھی مانگا گیا. بہرحال اب وہاں دوسرے دن رو رہے ہیں، یہ تو بڑی تفصیل ہے، بہرحال آپ واقعہ آپ لوگ جانتے بھی ہوں گے. اب وہاں رو رہے ہیں ابو بکر اور حضور مسجد میں. عمر پہنچے، کہے بھئی کیوں رو رہے ہیں آپ لوگ؟ حضور نے کہا میں سامنے اپنی موت دیکھ رہا ہوں، اس وجہ سے. اس وقت ابھی مال غنیمت حلال نہیں ہوا تھا. اب وہیں ایک ہی نشست میں بیٹھے بیٹھے کیا کہ وہی آ گئی، اب مال غنیمت حلال ہے. یہ دیکھیے یہ جو حوصلہ بڑھا ہے ان لوگوں کا. صرف 9 سال کی بقیہ جو زندگی حضور کی رہی ہے، اس میں 60-65 جنگ کیا ہے انہوں نے، جس میں خود جو ہے جو کہ غزوہ کہتے ہیں، اس میں 25-26 غزوات میں خود رہے، اسی کے غزوہ بھی غالباً کہتے ہیں. اور سرایا تو اور کتنے ہیں، لاکھوں لوگوں کو جنگ جلولہ میں عمر نے جلایا ہے. ارے ہم کیا کیا بتائیں آپ کو، رات ختم ہو جائے گی. بہرحال میں تو آپ لوگوں کی بات سنتا ہوں، اور میں جو سوچتا تھا کہ میں کیسے اس کو عام کروں، کہاں کہاں، اور ہم نے بہت جگہ یہ کتابیں بھیجی ہیں سچوالا صاحب، اور آپ کو بتا رہا ہوں بہت جگہ بہت لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ بھی، لیکن مجھ کو ذرا برابر پرواہ نہیں ہے. ہم نے سوچا کہ یہ جان اگر اس سے ہزاروں لوگوں کا ممکن ہے کہ لاکھوں کا فائدہ ہو جائے گا، کبھی تو وہ سمجھیں گے کہ منہاج کیسے یہ لکھا کیا ہے. دیکھیں جب میں تو بار بار کہتا ہوں کچھ نہیں، کچھ مت دیکھو، نہ تاریخ دیکھو، ہسٹری کچھ مت دیکھو، تم جو ہے قرآن کے ترجمے کو صرف پڑھو. 50% بھی اگر سمجھ میں آئے گا تم کو، اب ظاہر ہے بھائی اردو میں، اردو پڑھنے والا کیوں نہیں جانے گا. تو یہ وہ نفرت کرتا ہے، اور میرے کئی ساتھی ایسے ہو گئے ہیں کہ جو نفرت کرتے ہیں، بلکہ میری طرف سے وہ لوگوں سے کہا کرتے ہیں، اس بات کو عام کر رہے ہیں. تو بہرحال بہت سی چیزیں ہیں. اب مجھ سے جو اگر آپ پوچھنا چاہیں گے، کیونکہ پچھلی بار سچوالا صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی کیسے آپ جو ہے یہ بدلا، یہ تو اس وقت ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا. تو بہرحال بہت وقت لیا ہم نے آپ کا. اور عثمان بھائی بیچارے، اچھا ایک بات اور ہے، دیکھیے میں اتنا خوش رہتا ہوں آپ لوگوں سے کہ حالانکہ میں کسی لائق تو نہیں، ہم نے مٹھائی کے لیے آپ لوگوں کے لیے کچھ جو ہے اب کیا کہوں کچھ بھیجا تھا. اب پتہ نہیں وہ ریسیو تو ہونا چاہیے. یہ خوشی کا ہے، یہ ہے خوش میں اتنا ہوں کہ چلیے یہ پوری دنیا میں میسج جائے گا. اور دیکھیے یہ 1-2 سال ہی نہیں، اگر پوری عمر گزرتی چلی جائے، ہمارے جو ہے آنے والے بھی یہ سب سنیں گے، سمجھیں گے، اس پر اگر قائم رہیں گے تو دنیا بدل ہی جانی ہے. اس وجہ سے کہ قرآن بالکل جھوٹا ہے، بالکل جھوٹ ہے نا. تو جب وہ جو قرآن سمجھ جائے گا تو کہے گا بھئی اللہ کا کلام ہی نہیں ہو سکتا ہے نا. اب کیا ہے، وہ بخاری کی روایت ہے، ہم نے کتاب میں لکھا ہے اس کو. کیا حضور پوچھ رہے ہیں صحابہ سے کہ جانتے ہو سورج ڈوبتا تو کہاں جاتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ جانے، اللہ جانے. تو انہوں نے کہا کہ پھر آ کر ٹھیک جو ہے عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے. یہ دیکھیے ان لوگوں کو معلوم نہیں تھا حمید بھائی، سمجھا آپ نے، کہ اور بھی کوئی دنیا ہے. اور آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ دنیا میں 7 کانٹیننٹ ہیں، صرف ایشیا بر اعظم ہی میں
یہ سب جتنے ہیں نا جھاڑ پھونک دعا تعویذ یہ اس طرح کی ذہنیت اسی جگہ کی اور خاص طور سے گلف کی. تو یہ ہے کیا کہا جائے بہت بڑا. بس میں تو کہوں گا کہ آپ ایسے کیا مشورہ بھی نہیں دے سکتا, لیکن اگر قرآن کو جو پڑھ لے گا, ظاہر قرآن ہی بیس ہے نا, اب پوری دنیا میں ایک ہے, کوئی اس کا ترجمہ تھوڑا بہت بدل سکتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ بالکل بدل دے گا. تو وہ سامنے آئے گی تو وہ خود کہہ لے گا, یہ قرآن میں ہے کیا, آخر یہ ہے کیا بھائی. ہم تو وہی سوچا, ابھی سچ والا صاحب نے جو وہ جو ہے نا وہ ایک آیت جو چیلنج کیا گیا ہے کہ اگر تم سچ ہو تو اس جیسی ایک آیت بنا کر پیش کرو, وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. جانتے ہوں گے آپ لوگ, سچ والا صاحب بھی. ارے اس سے کئی گنا اچھا سچ والا صاحب نے بتایا ہے کہ کہاں سے میں بتاؤں کہ اس کو کون کاٹ سکتا ہے. وہ آئے تھے نا ایک بار آپ سے سر پاکستان کے ناصر نصیر یا کون تھے, اب وہ تو بس وہ ضدی آدمی ہے. مفتی قاسم جو اس وقت دیوبند کا محتمم ہے, وہ شخص جو اتنا جھلایا ہوا تھا, اس قدر تیور سے بات کر رہا تھا سچ والا صاحب, میں سوچا کہ ارے یار یہ کیسا شخص ہے, دیوبند کا یہ محتمم ہے, ارے سوری صدر ہے, اور یہ ایسی بات کرتا ہے. تو بہرحال کوئی اب ان لوگوں کی گنجائش نہیں ہے. ایک معمولی سا آدمی جو تھوڑا سا اردو کا جانکار ہے, وہ قرآن اگر پڑھے گا, پڑھوانے کی کوشش, یہ کیا ہے جانتے ہیں, قرآن پڑھنے نہیں دیتے. یہ بات جب ہم نے کتاب لکھی تھی تو ایک عالم تھا, وہ فون کیا کہ آپ کو کیا حق ہوتا ہے لکھنے کا. ہم کہے پہلے یہ بتاؤ کہ وہ جو ہم نے لکھا اس میں کوئی بات غلط ہو تو بتاؤ. وہ عائشہ والی بات تھی, وہ عائشہ پہ زنا کا جو الزام لگا تھا, سورہ اس میں نور میں وہ 11 سے 20 تک جو ہے آیت اسی کے سلسلے میں اتری ہے. تو ہم نے کہا یہ قرآن میں لکھا ہے نا یار, قرآن تو ظاہر ہے کہ 1400 سال پہلے لکھا ہوا ہے, تو وہ بات ہم نے نقل کیا ہے, تم لوگ بتاتے نہیں ہو. تو بہرحال وہ یعنی بہت کچھ ہوا ہے ہم سے اور ہوتا رہتا ہے. جی جی بہت ہم لے لیا آپ. جی جی بتائیے. نہیں کوئی بات نہیں, بہت اچھی باتیں کی آپ سے. میں آپ سے ایک دو سوال ہے میرے. ارے سر آپ آئے, بہت یہ تو ذرا نوازی ہے کہ آپ آئے اور اتنی اچھی اچھی باتیں کی. میرا آپ سے سوال ہے, آپ کرکٹ دیکھتے ہو کیا؟ کرکٹ. ہیلو, کرکٹ. میں ہاں کرکٹ میں بہت زیادہ تو نہیں, لیکن انٹرسٹ ہے, دیکھتا بھی ہوں. اگر فرصت رہتی ہے تو میری دکان میں ٹی وی ہے, دیکھتا بھی ہوں. جی بولیے. سچن تندولکر کے ہونے سے نہیں ہوگا, اس کے لیے ہمیں بہت سارے پلیئر چاہیے. تو میں تو آپ سے بہت پہلے سے بول رہا ہوں کہ آپ ٹائم نکالیے. بالکل 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 بالکل. جی اور اس کو سیریسلی کیجیے اس کو, اور آئیے. اور بہت اچھی باتیں ہیں سچ والا جی کے ساتھ, سونے پہ سہاگا والی بات ہے. ہاں جی ایسا ہے نا عثمان جی بھائی, جی ارے وہ عثمان بھائی کہ سیریسلی اب آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے, لیکن آپ یہ بتائیے, ہم نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر, سمجھا آپ نے, اور یہ مجھ سے کہا لوگوں نے کہ رے بھائی ایسا مت کرو, نہیں جانتے ہو نا یہ سب جو ہے گردن اتارنے والے اتار دیں گے. ہم نے کہا کوئی بات نہیں یار, 70 سال جی لیے. اگر ہم سمجھتے ہیں کم اس کو 30-40 سال ہم جانتے ہیں, علماء کی صحبت رہی ہے ہماری, اور ہم بتا رہے ہیں کہ وہ تفسیر ابن کثیر ہے, معرف القرآن ہے, اور نہ جانے تبری کی جو ہے وہ تاریخیں ہیں, یعنی بہت سی کتابیں ہیں, حاجی امداد اللہ مکی رحمۃ اللہ علیہ, یعنی بہت سی کتابیں پڑھی ہیں. اور میں دعویٰ تو نہیں کرنا چاہیے, لیکن میں یہ جانتا ہوں, کہہ سکتا ہوں کر میری بات کو, چونکہ میری بات نہیں ہے, قرآن ہے, وہ دیکھو کہ قرآن میں ہے کہ نہیں ہے. کیا وہ جواب دیں گے؟ کچھ ہے جواب؟ آج میں سن رہا تھا, آج ہی شاید یا اس سے پہلے آپ کی اسٹریم تھی, اس میں آپ نے کہا تھا نا کہ یہ کیا جواب دیں گے, کچھ ہے ہی نہیں. حقیقت یہی ہے, اتنا بڑا دھوکہ ہے قرآن کہ یہ کیسے, جو اسی سے روکتے ہیں سب کہ علماء جو ہیں مت پڑھنا, سب کے بس کی بات نہیں ہے, یہ کہہ کے عوام کو گمراہ کیے ہوئے ہیں سب. تو ہاں بولیے آپ, دیکھیے میں بولتا رہتا ہوں, بولیے. نہیں آپ بول رہے ہیں بہت, یہ امینات صاحب, یہ ایک عجوبہ ہے
कि आप सच वाला जी की स्ट्रीम में आके इतनी बातें बोल दिया, सच वाला जी इतने ध्यान मगन होकर सुन रहे हैं, मैं और अब्दुल भाई भी, कोई कुछ अच्छा, सुन कुछ रहे नहीं बोल रहा हैं, है। चलिए हाँ, बहुत बहुत अरे शुक्रिया। एक एक बात को सुन रहे हैं। हाँ जी, हाँ, अच्छा अच्छा, क्योंकि ठीक, जज़ाकल्लाह। और लोगों के अरे वो मैसेज आ रहे जबान हैं। पे आ जाए, हाँ नहीं, जी वो जी आपकी बातें जो हैं वो दुनिया को बतानी जी बहुत जरूरी है। सच वाला जी अकेले कहाँ तक करेंगे, जी आपको आगे आना जी। चाहिए, सच वाला जी का साथ देना चाहिए, और इस काम आप को ये आगे बढ़ाते बताइए हुए। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं अरे तो आप, हमेशा पहले अरे भी कहा था, आज भी हमने कहा है, जी मैं जो जानता हूँ वो जरूर बताऊंगा, और जी इतना तो जरूर जानता हूँ बिला तकल्लुफ कि कोई भी इस सब बातों को सुन लेगा, जी कुरान की बातें, तारीख जी छोड़ दीजिए। हालांकि हमने जो बहुत ऑथेंटिक, वो जानते होंगे सचवाला साहब की तबरी की क्या हैसियत है, जी इब्ने कसीर की जी क्या हैसियत है, जी अहयाउल उलूम इमाम गजाली की क्या हैसियत है, ऐसे जी ऐसे लोगों की किताबें हमने पढ़ रखी हैं, और सारे मवाद इकट्ठा करके हमने जो है एक कम से कम 1000 सफ़े की वो अभी सामने मेरे पड़ी हुई है किताब, उर्दू में लिखा हूँ, कि अब वो जी हिंदी में भी लिखने जा रहा हूँ उसको, क्योंकि जी इस इलाके में, ये हमारी जगहों पे उर्दू जो है अब लोग कम जानते हैं। तो हमें जी तो एक मैसेज देना है, मर जाएंगे हम, लेकिन हम तो कहते हैं कि भाई कयामत तक ये किताब रहेगी, तो जी जो भी समझना चाहेगा कुछ तो सोचेगा, यार मिनहाज लिखा क्या है, तो हम्म, देखेगा तो उसका होश उड़ जाएगा, समझ लीजिए आप। इस वजह से जी क्यों, कुरान की बातें हैं ना, तुम कह भी नहीं सकते कि इसका माने ये नहीं वो नहीं, ऐसा नहीं, जी थोड़ा जी बहुत जी अपने फेवर में कर सकते हो, और किया है लोगों ने। ये जी जो है आपके पाकिस्तान वाले जो अभी इंतकाल किए हैं, वो हाँ असरार साहब, उन्होंने गज़वे जो खंद ये बद्र का जो कॉन्टेक्स्ट बताया, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ये हुजूर की जंगी हिकमत अमली थी। अरे हमने कहा ये क्या कह रहा है शख्स भाई, हमने उनके फॉलोअर को, यानी असरार साहब के फॉलोअर को, हमने वो किताब में वो बात लिखी थी, पहली किताब में हमने उसको भेजा कि देखो इस सफ़ा में यहाँ से यहाँ तक ये वाकया है, और देख लो ये तबरी ने भी लिखा है, इब्ने कसीर ने भी लिखा है, और सारे माखज़ जो हैं लिया है मुफस्सरीन ने वहीं से। ये तो 100 साल वाले हैं। वो जो बिग बैंग की थ्योरी जब आई है ना, तो लोग चकरा गए हैं, तो अब कैसे उसको अपने फेवर में ले आए, कैसे फेवर में ले आए, तो ये जी सब बहुत जो है ना, अब हम क्या बताएं, हमारी कौम का सबसे बड़ा आलिमिया है, सबसे बड़ा, ये खुद क्यों नहीं पढ़ती है कुरान? जी कुरान बेस है, बुनियाद है। अरे उसके जी तर्जुमे को पढ़ो तुम, जिस जी रोज ये पढ़ लेंगे तर्जुमा, अरे मैं बता तो रहा हूँ, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब, ज़ालिक के माने को लेकर 10 सहाबा के अक़वाल कहते हैं कि ये किताब नहीं वो किताब है। अरे भाई जब ज़ालिक के माने वो होता है, तो क्यों जो है इस किताब को करे, तो या तो लिखवाओ, हाजा लिखवाओ, समझ रहे हैं ना। जी लेकिन जी जो क्या कि कभी कभी इस्तेमाल होता है, अरे भाई तो कभी कभी वाला इस्तेमाल लफ्ज करोगे कि जो मुरव्वज है वो करोगे, यानी बहुत सी चीजें हैं, हम क्या क्या बताएं आपसे। जी बहरहाल मिनाज आप साहब, लोग जानते हैं सब। आज हाँ आज आज रुक जाओ, मुझे समझ में आ गया हाँ कि जी, आपके सीने में इतनी बातें दफन है कि आप आज सारी हाँ बातें आप हाँ निकाल दोगे, धीरे धीरे चलेंगे हाँ, तो तो मंजिल पा अरे जाए। मैं क्या कर, जी हाँ नहीं, नहीं ठीक है, बहुत देखिए खूब मैं बहुत बता खूब। दूं, आपने कहा था ना, है ना, जी कहा था कि आप जुड़िए जुड़िए, मैं ये समझ रहा था कि देखिए आप जो है इसको माइंड न करें, क्योंकि ये ना सोचें कि मिनहाज जो है जुड़ना नहीं चाहता, ऐसा नहीं है। हाँ मैं लेकिन आप लोग इतनी ऊंची बातें कर रहे हैं, है ना, जैसे स्ट्रॉन्ग पायलट हैं, बरतानवी साहब हैं, आप हैं, हमीद भाई हैं, हमीद भाई तो मुझको लगता है शायर हैं क्या, या रहे होंगे, शायरी करते होंगे, इनकी जबान बड़ी सलीस से देखता हूँ। बहरहाल आशिक आशिक तो रहे हैं वो ये अपनी अपनी जिंदगी में। अच्छा अच्छा, ठीक है अच्छा अच्छा। ठीक है। जी देखिए हाँ, बिना कोई अगर गलती हुई तो माफ कीजिएगा, मैं बहुत जो है ना, दिल हमारा क्या बताऊं मैं कि हमारी कौम कैसे सुनेगी, और हम बार बार कहते हैं कुरान पढ़ो यार, कुरान पढ़ो, तर्जुमा पढ़ो, टूटी फूटी पढ़ो, छोड़ो दो जी तबलीग निसाफ और ये फजाइल अमाल और जो किताबें, इतनी लहवल हदीसें, इतनी मौजू हदीसें, उस पर किताबें भी लिखी गई हैं, लेकिन उसी को पढ़ते हैं तबलीगी वाले। बहरहाल जी जाने दीजिए, हम जी किसी को क्या कहें। ठीक है, जी बहुत बहुत जी शुक्रिया। जी विनाश साहब, और वो बड़ी देखिए, मेहरबानी आपकी। नहीं नहीं, देखिए ऐसा मत कहिए, मिनहाज कहा करिए ना, मैं मिनहाज हूँ, साहब नहीं हूँ। अब नहीं 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 हमने तो आप। देखिए किताब जो लिखी है उसमें मिनहाज बिन आरिफ लिखा है, अहमद पहले नाम था, मिनहाज अहमद, वो भी हमने हटा दिया कि जी अहमद जी लगाकर इस शख्स के साथ मैं अपना नाम जोड़ सकता हूँ, वो ऐसा शख्स है वो।
है, बताइए क्या क्या किया है उसने, है कितनी शादियां की, इनकी आदत थी, जंग जाते थे, ये लोग कहते थे पहले कि दिफाई जंग करते थे, यानी दिफा करते थे, एक जंग भी दिफाई नहीं है ये समझ लीजिए, जिसमें 64-65 जंगें हुजूर की क़यादत में हुई है, सराया और गजवा को लेकर, एक भी ये साबित नहीं कर सकते कि ये दिफाई जंग है, सारे जंग इक़दामी हुए हैं। ये एक बार किसी साहब ने कहा था, तो हमीद भाई ने ये कहा था कि नहीं स्ट्रॉन्ग पायलट साहब ने कहा था कि वो शाम गए, सीरिया गए, ईरान गए, तो क्या वहां पर जो है वो दिफाई जंग था, वो तो इक़दामी था। और एक जंग जितना मैं जानता हूं, मैंने तो पूरी किताब में कौन कौन सी जंग कब कब कैसे हुई है सारा लिखा हूं। तो बहरहाल अब हम क्या बताएं, वो हमारी किताब में बता रहा था ना कि मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी भेजा इस वजह से कि इन सब चीजों में जो सुधार अगर कर सकते हैं तो निसाब को चेंज कर कर, ये कुरान में जो ऐसे ऐसे आयात हैं इसको यही रोक सकते हैं, नहीं तो फिर नहीं रुकेगा और दूसरी जो है पार्टी नहीं रोक पाएगी। इस वजह से मैं मोहन भागवत को भेजा हूँ किताब, और भी जो है जैसे अब हम क्या बताएं, अपनी बात नहीं कहना चाहता ज्यादा, BHU यूनिवर्सिटी से हमारी किताब मांगी गई थी, दोनों फैकल्टी टीम में हमारी किताब गई है, ये एक कॉमन में है उर्दू में भी, तो है चूंकि हमने निकाल दिया है ना, कुरान को पढ़ा है हमने, समझा आपने। बहरहाल देखिए, आप लगता है कि ज्यादा वक्त ले लिए, ठीक है फिर कभी बात होगी। बिना साहब हम कांटेक्ट में रहेंगे, कर सकते जी नहीं वो आप वो हम उसमें बात कर लेंगे, बाद में एक प्लानिंग करेंगे, उसके साथ काम करेंगे, ठीक है ना सर। और आप आए, हाँ बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई जी। अरे अच्छी नहीं, ये जज्बाती बातें, आप कहते हैं ना कि जज्बात में नहीं होना चाहिए, लेकिन देखिए जब बात निकली तो अब जज्बे में थोड़ा आ ही जाते हैं, मैं क्या बताएं, ये हमारे नेचर है, फितरत है, लेकिन कंट्रोल करना चाहते हैं, ये ऐसा नहीं है, बहुत सीरियसली बात होनी चाहिए। जी जी ठीक है, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी बड़ी सारे अहबाब को, बड़ी मोहब्बत, बहुत प्यार, बहुत हम खुश रहेंगे आप लोग। ओके थैंक यू सर, बहुत जी जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया मिनहाज अहमद साहब।